plan or scheme. Hello. Row 1 premium bonus scheme. Hello. How are you doing? Write the information. Priyanka. Employee A, B, C. Anushree, Priyanka. Vidya. Employee A, B, C. Time allowed for 100 units. Time allowed for 100 units. 35, 40, and 42. Wages per unit rupees 2, 3, and 4. Hourly rate 7, rupees 7, 8, and 10. Actual time taken in hours. Actual time taken in hours 50, 48, 46. Hello. Actual unit produce. Actual unit produce 200 units for A, 150 units by B, and 125 units by C. So, last lecture to discussion the important provisions of Bank Regulation Act. Here you have given information regarding 3 workers or employees and provided information regarding the time allowed for 100 units, but actually production is different. Wages per unit 2, 3, 4. Hourly rate 7, 8, 10. Actual time taken in hours. सभी एम्प्लॉय जो है तीनों के अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है. एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस किया है 200, 150 एंड 125. इसका मतलब हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है. ओके, एंड आस्किंग यू टू कैलकुलेट earnings of each employee under Halsey premium bonus scheme and Row 1 premium bonus scheme. तो यहाँ पर कैलकुलेशंस करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर हल्से प्रीमियम बोनस स्कीम. कैलकुलेशंस ऑफ वेजेस अंडर हल्से प्रीमियम बोनस स्कीम. Write down calculation of wages under Halsey premium bonus scheme. The structures As we have many problems, we have taken many problems and we have know the formula for calculating wages under Halsey premium plan. Wages is equal to time taken into rate per hour plus standard time minus time taken upon 2 into rate per hour. So write down this formula. Because means the connectivity issue. Okay. Hello. चलो come to the point. यहाँ पे मैंने आपको हाँ, हुआ क्या आपका? फॉर्मूला लिखा. तो आप ए एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं. एम्प्लॉय ए ने एक्चुअल आउटपुट कितना किया है. देखो, आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस 200 यूनिट्स. यहाँ पर हमने लिया है 200 यूनिट्स. टाइम अलाउड पर 100 यूनिट्स पर 100 के लिए 35 लगता है. तो 200 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना था. इसलिए टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स अगर 35 है तो 200 के लिए कैलकुलेट करेंगे हम 200 इंटू 35, क्योंकि एक 100 यूनिट्स होते हैं 35 आवर्स में, तो 200 कितने में होंगे. इसके लिए कैलकुलेट करना होगा कितने यूनिट प्रोड्यूस किए और एक घंटा 100 यूनिट्स के लिए कितना समय लगता है और वो 100 यूनिट्स. ये ऐसा फॉर्मूला है. तो लिखो 200 into 35 upon 100 will get 70 hours as a time allowed, or we can say that a standard time for 200 units. 70 hours. Generally, basically, there are the two categories. लिखा गया आपने, कैलकुलेशन किया बेटा.
in this the chapter and unit, the change. हेलो, कैलकुलेशन किया है ना? यहाँ पे ऐसा हाँ, उसके बाद में देखो एक्चुअल टाइम टेकन कितना है. एक्चुअल टाइम टेकन बाय ए एम्प्लॉय इज 50 एंड आवरली रेट फॉर ए इज ₹7. ये पहला कॉलम देखो ए का, आवरली रेट भी गिवन है यहाँ पर. तो सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं हम वेजेस कैलकुलेशंस की तरफ. वेजेस इज इक्वल टू, वहां पर फॉर्मूला है टाइम टेकन. तो टाइम कितना लिया है 50 इंटू 7, रेट पर हावर 7 प्लस 70 क्या है हमारा स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट्स, दैट इज 70 माइनस 50 दैट इज टाइम टेकन अपॉन 2 इंटू 7 दैट इज रेट पर हावर. यहाँ पर रेट पर हावर दिया है. ओके, write down wages is equal to time taken 50 units 50 hours into rate per hour 7 plus 70 that is standard time for 200 units minus 50 that is actual time taken into 7. So calculate 50 into 7 कितना होता है? What is the calculation of 50 into 7? Hello, 50 into 7 कितना? 350 plus 70 minus 50 आता है 20 divided by 2 आता है 10. 10 into 7 किया तो कितना आएगा? 70. Okay. So write down 370 plus 70. You get 420 as a earning of worker 420. Then move to the next, that is employee B. Employee B की information देखो. Actual output कितना है? Actual output 150 है ना? 150 है. देखो वहां पर एक्चुअल आउटपुट 150. थोड़ा टाइम ले रहा है. सिस्टम थोड़ा स्लो है. वो भी आपको मैं बाद में मेंशन करने वाला हूँ. क्या क्या है, कैपिटल्स में क्या है, शेड्यूल 50 यूनिट्स है. ओके, 150 यूनिट सॉरी. टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स देखिए सेकंड का कितना है. टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट से 40. बी एम्प्लॉय का 40 है, इसलिए हमने यहाँ पर 40 लिया. Therefore, time allowed for 200 ने 150 units. Time allowed for 150 units. अगर 100 यूनिट्स के लिए 40 लगता है तो 150 यूनिट्स के लिए कितना? देखिए 150 इंटू 40 अपॉन 100 कीजिए, वहां पर आएगा आपका 60 आवर्स एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर एम्प्लॉय बी. Okay, we understand it how we have calculated 60 hours because we have provided that the workers produce 100 units in 40 hours but his actual production is 150. So how much he have been time allowed? तो टाइम अलाउड होगा उसका 150 इंटू 40 अपॉन 100 तो 60 आवर्स. उसने एक्चुअल टाइम कितना लिया है? एक्चुअल टाइम टेकन बाय बी एम्प्लॉय देयर इज गिवन 48 आवर्स. 48 आवर्स गिवन है. आवरली रेट कितना है देखो, बी का आवरली रेट है A8. ओके, तो उसे हम डालते हैं अब फॉर्मूला में. फॉर्मूला तो गिवन है, ऊपर लिखा है मैंने. वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर अपॉन स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन 2 इनटू रेट पर आवर. यहाँ पर टाइम टेकन है 48 आवर्स इंटू रेट पर आवर है 8
प्लस स्टैंडर्ड टाइम है 60 माइनस एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन 48/2 इंटू 8। यहाँ पर अगर 48 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 8 तो आएगा 384। करो कैलकुलेशंस करो। 48 इंटू 8 कितना आता है? हेलो, कैलकुलेट इट। We'll get 384. After that, look at the second part of the calculation, that is 60 minus 48. कितना आएगा? 12। 12/2 किया तो जो आएगा उसे मल्टीप्लाई करो 8 से, आपका आएगा 48। आया है कि देखो कुछ प्रॉब्लम है? हाँ सर, आया है 48। तो उसे ऐड कर दो, आपको मिलेगा 432 एज अ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय बी एज पर हल्से प्लान। 432। ओके, आ गया? हाँ, तो देखिए आप एम्प्लॉय सी की इंफॉर्मेशन देखिए। एम्प्लॉय सी का एक्चुअल आउटपुट कितना है? 125 है क्या? देखो है, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस 125। टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स एम्प्लॉय सी के लिए कितना है? 42 आवर्स है कि देखो 42 आवर्स। ओके, और 100 यूनिट्स। हाँ, 42 आवर्स। हाउ मेनी ही हैज प्रोड्यूस्ड? हाउ मेनी ही हैज प्रोड्यूस्ड? 125। यहाँ पर 125 कर दो। therefore टाइम अलाउड फॉर 125 यूनिट्स। 125 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर वो 100 यूनिट्स बनाता है 42 में, तो हमें करना है 125 इंटू 42/100 विल गेट टाइम अलाउड फॉर 125, दैट इज 52.5। देखो वहां पर आता है क्या? कैलकुलेशंस करो। हाँ, आपको कैलकुलेशंस करने हैं। 125 इंटू 42/100 करो। 52.5 आवर्स आता है क्या? बोलो। 52.5। हाँ सर, आता है। हाँ, तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? देखो प्रॉब्लम में गिवन है सी एम्प्लॉय सी का एक्चुअल टाइम टेकन 46 है। हाँ सर, 46। हाँ, ओके। हावरली रेट कितना है एम्प्लॉय सी का? देखो हावरली रेट 10 है ना, तो 10 दीजिए वहां पर। ओके, we have all the information for calculation of employee C's remuneration on the basis of Halsey plan. So we know that the formula of Halsey plan is time taken into rate per hour plus standard time minus time taken upon 2 into rate per hour. टाइम टेकन है 46 आवर, यहाँ पर गिवन है, हमने कैलकुलेट किया है 46 आवर्स इंटू 10। ये हमारा रेट है एम्प्लॉय सी के लिए पर आवर प्लस 52.5 दैट वी हैव कैलकुलेटेड टाइम अलाउड, और वी कैन से दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर 125 यूनिट्स दैट इज 52.5 माइनस 46। ये हमारा टाइम टेकन यहाँ पर रिपीट हो जाता है, ये सेम होता है। ओके, अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10 किया है, तो इसका मतलब रेट एक बार फिर यहाँ पर यूज किया है। अगर 46 इंटू 10 करोगे तो आपको आएगा 460 प्लस 52.5 करो माइनस 46 कितना आता है? देखो 52.5 माइनस 46 अपॉन 2 करो डिवाइडेड बाय 2, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। देखो कितना आता है? हेलो, 3.25। कितना? 3.25। हाँ, तो मल्टीप्लाई करो इसे 10 से, आपका आ जाएगा 32.5। यस सर। ऐड करो
दोनों को एडिशन करो 460 प्लस 32.5 492.5. yes right. Go on to the next part of solution, that is calculation of earning under row 1 premium bonus plan. Okay, what is the formula of row 1 premium bonus plan? row 1 plan का formula क्या है? Time taken into rate per hour plus standard time minus time taken upon standard time into time taken into rate per hour. हल्से प्लान में और रोवन प्लान में क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पर ये दोनों आइटम तो सेम है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, लेकिन यहाँ पर 2 से नहीं डिवाइड किया है, यहाँ से स्टैंडर्ड टाइम से ही डिवाइड किया है। और दूसरा, हल्से प्लान में हम ब्रैकेट से बाहर स्लिप रेट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर टाइम से भी मल्टीप्लाई करना है, टाइम टेकन से। ओके, so while calculating the earning of workers under row 1 plan, you should be considered time taken into rate per hour plus standard time minus time taken upon standard time. standard time को बहुत महत्वपूर्ण दिया है वहां पर, into time taken into rate per hour। तो हमने पहले ही सभी कैलकुलेशंस किए हैं, कितना एम्प्लॉय ए का एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, देखो एम्प्लॉय ए का प्रॉब्लम में गिवन है, और हमने बाद में कैलकुलेट भी किया है। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, देखो एक्चुअल टाइम टेकन इन हावर्स 50 हावर्स, तो यहाँ पर 50 ले लो, 50। रेट कितना है, देखो उनका रेट पर आवर कितना है ए के लिए, एम्प्लॉय ए के लिए रेट, एम्प्लॉय ए के लिए रेट है 7, रेट 7 है। उसके बाद में स्टैंडर्ड हावर्स हमने कैलकुलेट किए हैं 70 माइनस टाइम टेकन 50 अपॉन 70, इसका मतलब 20 अपॉन 70 इंटू 50 इंटू 7, 350 आएगा। 20 इंटू 350 करो और 50 इंटू 7, 50 इंटू 7 आएगा 350 प्लस इसका जो आएगा उसे मल्टीप्लाई करो 350 से, 20 हावर्स अपॉन 70 हावर्स आएगा, और उसका जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करो 350 से, तो आपको 100 मिलता है कि देखो। यस बोलो। 20 डिवाइडेड बाय 70 करने के बाद वो 0.28 ऐसा आता है, तो उसको 30 करने का क्या राउंड फिगर में? नहीं, उसे मल्टीप्लाई करो 350 से, क्योंकि 50 इंटू 7 कितना आएगा, 350 आएगा, उसे मल्टीप्लाई करो ना, जो आता है ना उसे मल्टीप्लाई करो। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करो। ओके, 20 अपॉन 70 वो आता है 0.28571 एंड समथिंग मोर, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 350 से, 100 आ जाता है, वो 100 आ जाता है, देखो है ना। तो ऐड कर दो 350 में, 350 प्लस 450। ओके, लाइकवाइज बी का भी कैलकुलेट करो। बी का एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, बी का देखो वहां पर प्रॉब्लम में गिवन है, एक्चुअल टाइम टेकन बाय बी एम्प्लॉय, सॉरी बी एम्प्लॉय ने एक्चुअल टाइम कितना दिया है 48 आवर्स। ओके, और स्टैंडर्ड टाइम बी का कितना कैलकुलेट किया है हमने 60 आवर्स, दोनों यूज करने के यहाँ पर 48 आवर्स इंटू 8 उसका रेट है प्लस 60 आवर्स, तो हमने स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया है 60 आवर्स माइनस 48 आवर्स जो एक्चुअल टाइम गिवन है प्रॉब्लम में, अपॉन 60 आवर्स हमने कैलकुलेट किए थे वो
इंटू 48 आवर्स जो हमारे को गिवन है प्रॉब्लम में, इंटू रेट, रेट भी गिवन है प्रॉब्लम में। 48 आवर्स इंटू 8 करो, 48 आवर्स इंटू 8 कितना आता है बताओ? 48 शेड्यूल 30 and 384 आता है क्या? 1 income 384. 384। देन नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करो, 60 आवर्स माइनस 48 आवर्स वो आ जाएगा 12। 12 को डिवाइड करो 60 से, 12 को डिवाइड करो 60 से। Oh. interest on other income क्या सर है आता क्या? है। हाँ, तो कितना आता है उसे मल्टीप्लाई करो आगे के 48 इंटू 8 के कैलकुलेशन से। second banner I repeat again second banner 76.80 आता है। 76.8. हाँ तो राइट है ना? हाँ Yes, तो आगे जाओ और ऐड करो उसे 384 प्लस 76.80। ठीक है, बैलेंस शीट या किसी को मेंशन करें इससे कैपिटल एंड लायबिलिटी एसेट्स आए 46.8. ये थी ओके। सो लाइकवाइज कैलकुलेट करो एम्प्लॉय सी का। एम्प्लॉय सी के लिए कितना हावर्स एक्चुअल टाइम टेकन है प्रॉब्लम में देखो। ओके एम्प्लॉय सी का एक्चुअल टाइम टेकन इन आवर्स 46 आवर्स है। ओके हमने स्टैंडर्ड टाइम कितना कैलकुलेट किया है उसके लिए? स्टैंडर्ड टाइम 52.5, 46 एंड 42.5 दोनों को यूज करना है और रेट 10 का है, यहाँ पर 10 लिखा है तो तीनों यहाँ पर हमें रिमाइंड करना है, ध्यान में रखना है तीनों को। 46 आवर्स ये हमारा एक्चुअल टाइम टेकन बाय एम्प्लॉय सी इनटू रेट पर आवर फॉर एम्प्लॉय सी plus 52.5 hours, that is standard time calculated for his production, minus 46 hours, that is time taken by him, upon 52.5, that is time allowed or standard time, into 46, that is time taken by him, into 10 rate for his production, rate per hour for his production। 46 into 10 अगर करते हो तो कितना आएगा देखो। ये क्या हो गया? इनकम रिलेटेड बाय शेड्यूल 13 and 14 460 आता है। टीचर रिलेटेड बाय शेड्यूल 15 and 16 460 पैनल हेडलाइन लिखो प्लस आगे का कैलकुलेशंस करो। ठीक है, एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन आ जाएगा ब्रैकेट का उसे मल्टीप्लाई करो 460 से। शेड्यूल 15 interest expenditures expended interest expended और शेड्यूल 16 आया है क्या? 56.95 देखो। यस सर। ओके तो ऐड करो उसे 460 में, मिलेगा आपको 516.95। interest expended शेड्यूल 15 516.95। शेड्यूल 16 operating Look at this problem once again. ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम को भी आ सकता है। Here you have given information regarding 3 employees and information given is a different, है ना? हर एक एम्प्लॉय के लिए आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन दिया है। तो देखिए एम्प्लॉय ए, बी और सी, जब हम हाल से प्रीमियम प्लान से कैलकुलेट करेंगे तो तीनों का कैलकुलेट करना है। रो 1 प्लान से कैलकुलेट करेंगे तो तीनों का कैलकुलेट करना है। ओके look at this, there is a some workings for calculations of wages under halse and row 1 plan। तो यहाँ पर हल्से का जो फॉर्मूला था वो लिख लीजिए, किसी के पास नहीं होगा तो। टाइम टेकन कितने स्टूडेंट? 18 स्टूडेंट्स।
So time taken into rate per hour plus standard time minus time taken upon 2 into rate per hour. Okay, that is the formula for calculating Halsey premium bonus scheme, earnings of Halsey premium bonus scheme. वेजेस तो एम्प्लॉय ए की इंफॉर्मेशन थी गिवन थी, उसके बारे में हमने देखा कि एक्चुअल आउटपुट था एम्प्लॉय ए का, यहाँ पर गिवन है। मैं हाईलाइट करता हूँ वंस अगेन 200 यूनिट्स, ये 200 यूनिट्स यहाँ पर से लिए हमने। देन टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स, टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स ए का था 35, लेकिन ए ने प्रोड्यूस किया था 200 यूनिट्स। ओके, टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स, लेकिन ये ने प्रोड्यूस किए 200 यूनिट्स, तो हमें टाइम पता करना होगा स्टैंडर्ड टाइम की 200 यूनिट्स के लिए, उसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, अगर 100 यूनिट्स 35 आवर्स में होते हैं तो 200 यूनिट्स कितने में होगी, तो से 200 यूनिट्स इनटू आवर्स फॉर 100 units upon 100 units. We'll get 70 hours as a standard time for employee A. After that, we have right here actual time taken. It is given in the problem, that is this part of the question. Actual time taken 50 hours. Hourly rate is 7 and it is provided in the given information. After that, use formula and put the all values into the formula. So wages is equal to time taken यहाँ पर था 50 hours into rate per hour 7 plus 70 क्या है हमारा स्टैंडर्ड टाइम माइनस 50 है हमारा टाइम टेकन upon 2 into 7. When we have calculated 50 into 7, we'll get 350 प्लस जो 70 माइनस 50 था उसका अगर कैलकुलेशन किया तो हमें मिलेगा 20 अपॉन 2, तो 20 अपॉन 2 तो इससे मिलेगा हमें 10 इंटू 7 किया तो हमें मिलेगा 70, 350 प्लस 70 किया तो हमें मिलेगा 420. Then we have calculated employee B's remuneration on the basis of information given about the employee B. Actual output in employee ने कितना किया है 150. Here is the information actual output. Actual time taken कितना है 48 है, तो वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर हमने दिया है। टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स कितना है देखो यहाँ पर गिवन है बी के लिए 40, तो वहाँ पर 40 का यूज किया हमने। Therefore टाइम अलाउड फॉर 150 यूनिट्स, जो कि 150 यूनिट्स किए है तो उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है ये कैलकुलेट किया है हमने। उसके लिए फॉर्मूला है 150 यूनिट्स इंटू 40 अपॉन 100 विल गेट 60 आवर्स। Actual time taken given in the problem is 48 hours for P, so that's why we use here 48 hours. Hourly rate ₹8 given for B. So wages 48 hours into 8 किया तो 384 आता है, प्लस ये जो आगे वाला कैलकुलेशन है वो करने के बाद आपको आएगा 48 and we'll get the total of 432 as a remuneration of employee P. After that, we have calculated remuneration of employee C on the basis of information provided regarding employee C. तो एक्चुअल आउटपुट कितना किया है एम्प्लॉय सी ने 125, कहाँ से आया 125 यहाँ से आया है, प्रॉब्लम में गिवन है एक्चुअल इनपुट प्रोड्यूस 125. ओके 125. टाइम अलाउड पर 100 यूनिट्स कहाँ से आया है 42, ये आया है यहाँ से 42. टाइम अलाउड आवर्स 100 यूनिट्स 42. ओके, आफ्टर दैट time allowed for 125 units. The given time is only for 100 units, but we require 125 units time. So we have calculated here on the basis of 100 units and required time for 100 units. We have calculated here 125 into 125 into 42, that is our 100 units time. तो वहाँ पर हमें आया 52.5 hours. After that we have taken here actual time taken. Actual time taken is given
taken from the given information, that is 46. ओके 46 आया। हावरली रेट वहां पर हमने सेपरेट गिवन है, देखो प्रॉब्लम में वही यूज किया है, हावरली रेट 10। ओके, आफ्टर दैट वी हैव कैलकुलेटेड द वेजेस ऑफ employee C, 46 hours into 10. 46 hour is actual time taken by the employee, into 10 है rate per hour, plus 52.5 है standard time allowed for the production, minus 46 है हमारा standard time और सॉरी टाइम टेकन और एक्चुअल टाइम अपॉन 2 से 50% दिया जाता है हल से प्रीमियम प्लान में, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं उसे। ओके, प्लस 10 है हमारा रेट, तो उसका आता है 46 into 10 is equal to 460, and after the second part's calculation we'll get a 32.5. We'll add these two figures together and we'll get a 492.5 as a remuneration of worker C. So look at the next part of the calculations of earnings under row 1 premium bonus plan. We have taken here the formula: time taken into rate per hour plus standard time minus time taken upon standard time into time taken into rate per hour. Please compare these two formulas with each other. दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करो, क्या दिखता है आपको बताओ। दोनों फॉर्मूला में सेम इंफॉर्मेशन कौन सा यूज किया है और डिफरेंस क्या है बताओ। What is the difference between two formula? I am asking you. Hello beta, you can tell me in Hindi, in Marathi or English. What is the difference between these two formulas? Special item and the adjustment is adjustments. Hello, I am asking you, beta. I am asking you, what is the difference between these two formulas? Because many students can confuse here, है ना। आपको ध्यान में रखना है कैलकुलेशन करते समय कि ये यहाँ पर जो एक बात है, आगे वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा अलग है। ओके, ये अलग कैसा है देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम तो हल से प्रीमियम प्लान में भी था, टाइम टेकन भी हल से प्रीमियम प्लान में भी था, लेकिन यहाँ पर डिवाइड किया है उसे स्टैंडर्ड टाइम से और हमने हल से प्लान में डिवाइड किया था 2 से, है ना। Then again here is the difference. We have again taken here the time taken and rate per hour. दोनों को हमने रिपीट किया है, टाइम टेकन यहाँ रिपीट हुआ है। पहले जो फॉर्मूला था हल से प्रीमियम प्लान का, उसमें ये टाइम टेकन यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सिर्फ रेट पर आवर था। ओके, आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन वी हैव कैलकुलेटेड अर्निंग्स ऑफ रो 1, earnings of worker employee A, B and C under row 1 premium bonus plan. So as far as employee A is concerned, we have calculated here the wages of worker A or employee A as 50 hours as he's taken time for the work. 50 hours into 7, that is a rate per hour, plus 70 hours minus 50, that is 20/70। 20/70 करने के बाद जो आता है उसे हमने मल्टीप्लाई किया है इसका आने वाला कैलकुलेशन से। तो हमारा पहला कैलकुलेशन आया है 350 और बाद में का जो प्लस की बाद में का जो कैलकुलेशन है हमारा वो आया है यहाँ पर 100। आफ्टर दैट विल गेट अ 450 एज अ रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर ए। After that we have used employee B's information for calculation of earnings according to the row 1 plan। तो row 1 plan से
कैलकुलेशन क्या है यहाँ पर वेजेस का, तो वेजेस वहाँ पर टाइम टेकन था, बी ने टाइम दिया था 48 आवर्स और उसका रेट था 8, 48 आवर्स इंटू रेट किया हमने ये तो आया 384. दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द solution. And the next part of solution is that 60 hours minus 48. It means that 12 hours upon 60 hours. After that, we'll get calculation of bracket and multiplied it by the 48 into 8. That is 384. So we have we get here 76.80. Okay, as a bonus. So here is the wages 384 plus 76.80, and after that we have add together these two values, the guaranteed wages plus bonus 76.80, and after that we get our total wages 460.80. After that we have calculated C's wages on the basis of C's information. C एम्प्लॉय की जो इंफॉर्मेशन थी उसका यूज किया और हमने C का कैलकुलेशन किया है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रो 1 प्लान. रो 1 प्लान के अनुसार उसने एक्चुअल टाइम लिया था, टाइम टेकन 46 आवर्स, ये प्रॉब्लम में गिवन था, इनटू रेट ये भी प्रॉब्लम में गिवन था. हमने कैलकुलेट किया था स्टैंडर्ड टाइम फॉर हिज प्रोडक्शन, और उसके बाद में फिर एक बार हमने जो हमारा टाइम टेकन है ये यहाँ पर यूज किया है 46. इसका मतलब हर फॉर्मूला में आपको दो प्रकार का कैलकुलेशंस होगा. ये दोनों फॉर्मूले में पहला एक पार्ट होता है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो रिलेटेड है हमारे गारंटीड वेजेस से, और सेकंड पार्ट जो है हमारा वो रिलेटेड है विद बोनस, इज रिलेटेड विद द बोनस. So we'll add together the guaranteed wages and a bonus, and after that we'll get a total wages of employee C, IU 16.95. Okay. So if you have any question, you can ask me. If you do not have any question, no problem. Please tell me whether you have got it or not. Any doubt in difficulty? Do you understand this problem? आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है ना? हाँ. कोई प्रॉब्लम अगर कोई क्वेश्चन है तो आस्क करो, पूछो मुझे. अगर नहीं है तो नो डाउट विल मीट टुमारो विद न्यू प्रॉब्लम, विद न्यू प्रॉब्लम. हैव यू गिवन योर अटेंडेंस? अटेंडेंस दिया है आपने? Yes, sir. Okay. Then if you do not have any query, any questions, then you can leave the meeting because our time is near about the end. So if you interested to take us screenshots, I will once again show you all problems. Problems की screenshot अगर लेनी है आपको तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपके शेड्यूल ऑफिसर चार्ट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्म ए क्या है, फॉर्म बी क्या है, शेड्यूल फॉर्म ए में शेड्यूल कितने हैं और फॉर्म बी में शेड्यूल कितने हैं. वाह. के बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन से से प्लान था ये एम्प्लॉय बी एंड सी. एम्प्लॉय बी का देखो ठीक है. उसके बाद में सेकंड मेथड था हमारा रो 1, और एक बार रो 1 के बारे में भी रो
वन एम्प्लॉई ए का रेम्यूनरेशन, मैं आपको बताऊंगा दिखाऊंगा एम्प्लॉई बी एंड सी का रेम्यूनरेशन. Okay, here I'm going to stop my sharing, my screen sharing with you. Okay, it's enough for today. We'll meet tomorrow with new problem. Thank you. Nima, let the meeting. Urmila, let the meeting. Savita, let the meeting. Yes, sir. Savita and Lahari Hima. Please let the meeting.